हाँ जी बेटा. So let's start with the new topic for today's class. Last class we have finished off with the dilution problems. If you remember, उससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? मोलारिटी मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था. Now today I will be doing two topics with you. First is the stoichiometry problem. Stoichiometry problems के साथ हम लोग start करेंगे. सबसे पहले क्या होती है stoichiometry problem? Let's discuss. उसके बाद फिर एक नया टॉपिक और देखेंगे stoichiometry के बाद. So starting off with stoichiometric problems. So first thing that I want to know from you all, that what do we mean by a stoichiometry? We would surely have heard about stoichiometry. होती क्या है ना बच्चे को? देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूँ, जो इस बच्ची ने वही चीज बोली, बट इसको मैं और सिंप्लीफाइड वर्ड्स में कहना चाहूँ, तभी भी आप कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हो, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आप नंबर यूज करते हो बैलेंसिंग के लिए, जैसे 2H2 plus O2 gives you 2H2, the stoichiometry of that particular equation is H2 के रिस्पेक्ट में it's 2. ये हमने क्या इक्वेशन लिखी बेटा? ये plus O2 gas, let's say it is giving us 2H2O liquid. So bacha, this 2, this 1 over here and this 2 over here is nothing this. So हम क्या नाम देते हैं बच्चे? We call this to be the stoichiometry. इसी को हम बोलते हैं stoichiometry का नाम, that the नंबर दैट वी यूज ओवर हियर, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हम नंबर यूज करते हैं, दैट नंबर दैट वी यूज, वी कॉल दैट नंबर टू बी द stoichiometry in the chemical equation, in a balanced chemical equation. And this stoichiometry is basically being used to calculate the number of moles, mass, anything of a particular element. So basically it is being used to find out the थिंग दैट जो हम यूनिटरी मेथड से काम करते थे. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वन पेन इज ऑफ 5 रुपीज, देन हाउ much you would be required to pay if you need to buy 10 pens. So that's a unitary method that we do. We would be doing that thing over here. So let's say for example एक इक्वेशन है बच्चा मेरे पास, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट solid breaks down to give us calcium oxide solid plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये है बेटा इक्वेशन हम लोगों के पास, लेट से. ठीक है. नाउ इसमें हम स्टोइशियोमेट्री अगर देखें तो स्टोइशियोमेट्री क्या है? 1:1:2, 1 with respect to CaCO3, with respect to CaO, with respect to CO2, we are having with 1:1:1 stoichiometry in all three of them. यही चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे. अब बच्चा जब हम देखते हैं कि मोल्स आपके 1 है, 1 mole is basically being equivalent to the मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, जिसको आप मोलर मास का नाम देते हो. मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इज बेसिकली द 1 मोल बीइंग इक्वल टू, जैसे यहां पे 1 मोल ऑफ CaCO3 है बेटा, तो इफ आई वांट आई कैन राइट दैट 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. क्यों बच्चा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास क्या आता है? 100 आता है. सर कैसे? कैल्शियम का होता है बच्चा 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन इट्स 48, comes out to be 100 grams. So it says that 100 grams calcium carbonate decomposes to give 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide. 56 grams of calcium oxide देगा and 44 grams of carbon dioxide देगा. अब इस मेथड के बेसिस पे या इस स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पे आप कोई भी चीज ले सकते हो. मतलब अगर 100 ग्राम्स ये दे रहा है तो आई कैन राइट दैट 200 grams of this would be giving us 112 grams of this would be giving us 88 grams of this.
1 kg of this would be giving us 0.56 kgs of this and 0.44 kgs of this. 2 kgs of this would be giving us 1.12 kgs of this and 0.88 kgs of this. So beta, from a generalized equation, this one I can find out, चाहे हमें किसी का भी कितना भी मास दिया हो, we can easily determine the mass of the product that would be formed in the equation. ये काम होता है, ये जरूरत होती है हमारे को स्टोइशियोमेट्री की, ठीक है. And for the stoichiometric questions to be done, the first and foremost thing is that my equation should be a balanced chemical equation. अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है बेटा तो स्टोइशियोमेट्री में कभी भी आपका आंसर ठीक नहीं आ सकता. आंसर वुड ओनली कम आउट टू बी करेक्ट इफ आर इक्वेशन वुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आई क्लियर विद दिस? इतनी बात में किसी को कुछ पूछना है सर आपने क्या किया, एक बार फिर रिपीट कर दो. आई वुड रिपीट दैट, बट क्लियर होना चाहिए फॉर अस टू डू द क्वेश्चंस. हाँ दोस्त, क्वेश्चंस कराऊंगा ना बेटा अभी. नहीं बेटा, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या क्वेश्चन दूंगा, दैट कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू गेट 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड ये जनरलाइज चीज लिखेंगे. फ्रॉम दिस वी वुड बी कैलकुलेटिंग कि हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा अगर हमें 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो, बाय डूइंग द यूनिटरी मेथड. हाँ बेटा, उसी को रेफर करता है. दैट इज दिस टू, this one over here and this 2 over here, that we call it to be the stoichiometry. क्लियर बेटा? पक्का से कोई डाउट नहीं. इसको नोट डाउन करते हैं. लेट्स डू अ क्वेश्चन. क्लियर होएगी चीज क्या है, जल्दी से नोट डाउन करते हैं इसको. First and foremost thing for the stoichiometry questions is that the equation should be a balanced chemical equation. If our equation would not be balanced, we would not be able to solve the questions. That's for sure. तो हर समय इक्वेशन बैलेंस होना कंपलसरी है बेटा, ये ध्यान रखोगे. पेज नंबर 15. लेट्स कम ओवर टू अ सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1. पेज नंबर 15, सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1. 1515 सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1. करें स्टार्ट बेटा? आओ चला दिया. पढ़ बेटा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. सॉल्व क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे. क्या है बच्चा? पढ़ बेटा. Calculate the amount of calcium carbonate required to get 200 grams of calcium oxide. तो सबसे पहला काम क्या? That I would be writing a balanced chemical equation for the same. CaCO3 solid decomposes to give us calcium oxide solid plus carbon dioxide gas. It is already a balanced equation. हो गया काम. सेकेंड काम क्या करना है, इसके मोलर मास का पूरा एक इक्वेशन बनाओ. कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास इज 100 ग्राम्स, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास इज 56 ग्राम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम्स. ये आ गए सारे मोलर मासेस हमारे पास. अब जो भी चीज आपको क्वेश्चन में निकालनी है बेटा, वी हैव टू कीप दैट थिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. हमें क्या निकालना है बच्चे? वी नीड टू कैलकुलेट द कैल्शियम कार्बोनेट. यही बोला निकालने के लिए, ठीक है. तो जो चीज आपको गिवन है, सॉरी, दैट वी वुड बी कीपिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. सो गिवन क्या है? मेरे ख्याल से कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है या कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है? कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है. सो आई वुड राइट दैट 56 grams of calcium oxide requires 100 grams of calcium carbonate. Yes or no? बोलो बच्चा. So 1 gram of calcium oxide would be requiring 100 by 56 grams. And similarly हमें कितना बोला बेटा? 200 grams of this would be requiring 100 by 56 into, from here we would be able to find out the mass of
calcium carbonate that is being required to us. आई बात समझ बेटा? पक्का? जल्दी से क्या आ रही है वैल्यू एक बार बता भी दो मेरे को. 357.1 grams of calcium carbonate is being required to us. This is the simplest question of stoichiometry की कैसे करना था वो आपके सामने है. अब आगे और इससे टिपिकल क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे. आई बात बेटा समझ में? स्टोइशियोमेट्री क्या है एवरीवन? पक्का? चले आगे. ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया? हाँ जी, सॉल्व क्वेश्चन भी नोट डाउन करने हैं, अनसॉल्व भी करने होते हैं नोट डाउन, सब नोट डाउन करने होते हैं. चलो, अगर कर लिया है तो बेटा देन आई वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हो गया है तो सबका खुश हो गया? जल्दी से ऋषभ पीछे जा रहा है, यहाँ बैठ जाए यार, ये भी तो फर्स्ट बेंच है. मायरा कहाँ रह गई आज? चले बेटा आ जाओ. दिख रहा है? नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया ना? यहां से बढ़िया वहां दिखता है ना? आ जाओ बेटा. सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. अ गुड क्वेश्चन. अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ध्यान से देखोगे सब मेरे साथ. अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. शुभम पढ़ बेटा क्या है थर्ड क्वेश्चन. ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं. पढ़ बच्चे. calculate the amount and calculate the amount of sulfuric acid required to neutralize 10 grams of NaOH. Also calculate the amount and number of moles of Na2SO4 obtained. ध्यान से देखेगा हर कोई यहाँ पे बच्चा. बेटा क्वेश्चन क्यों लिखती है बच्चे? बुक तो तेरे पास ही रहनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना. क्यों टाइम वेस्ट करेंगे क्वेश्चन का? हाँ बिल्कुल. देखो सबसे पहला काम क्या सिखाया मैंने आपको? दैट वी नीड टू हैव विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वी हैव डिड दिस इक्वेशन इन 10th क्लास. दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड प्लस बेस गिव्स यू अ सॉल्ट. सो वही काम करेंगे क्या? NaOH प्लस H2SO4 gives us Na2SO4 plus water. Acid plus base gives you salt plus water. This is an equation. Now balancing this equation, Na2 तो क्या हो जाएगा बच्चा? 2NaOH. और अगर मैं सल्फेट सेम है, हाइड्रोजन की बात करूं तो इट वुड बी 2H2O. It is a balanced chemical equation now. Secondly, we need to move towards the molar mass equation now. So बच्चा NaOH का molar mass होता है 40, बट 2 मोल्स हैं बच्चे NaOH के, तो इट वुड बी 80 ग्राम्स ऑफ NaOH. H2SO4 का मोलर मास आता है बच्चा 98 ग्राम्स. H2SO4 is 98 grams. Na2SO4 if you would find out, it would come out to be somewhere around to be 142. And water आता है बेटा 18, तो 2 into 18 is 36 grams. Is there any problem with this first of all? अब आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा? You have been asked to calculate the mass of this, amount of this. First thing, you have been told to calculate the amount and number of moles of Na2SO4. दो चीजें आपसे बोली है. तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम, पहले H2SO4 पे काम करना स्टार्ट करते हैं हम. किससे? इससे. मैंने क्या बोला? जो चीज गिवन होगी उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जो निकालनी है उसको राइट हैंड साइड पे. गिवन है NaOH, so can I write this that 80 grams of NaOH requires 98 grams of H2SO4. Yes or no बच्चा? Yes or no? अरे बोलो ना. Yes sir. तेज. So 1 gram of NaOH के लिए क्या हो जाएगा बच्चे? 98 by grams of H2SO4. So this is the thing with us. अब
हमें कितने ग्राम्स बोले हैं बच्चे क्वेश्चन में? वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट 10 ग्राम्स. सो 10 grams of NaOH would require 98 by 80 into, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं, दैट वुड कम आउट टू बी 49 by 4 और 12.25 grams of H2SO4. Is this clear बच्चा? Is this clear? Now आपसे बोला बेटा Na2SO4 भी निकालना है. अगर बच्चे Na2SO4 निकालना है और क्वेश्चन में क्लियरली बोला है that how much H2SO4 is required to neutralize. न्यूट्रलाइजेशन होने का मतलब है जितना ये यूज हो रहा होगा उतना ही ये भी यूज हो रहा होगा. तो अब आपकी मर्जी है, आप आंसर इससे निकालो Na2SO4 का या आप आंसर इससे निकालो Na2SO4 का. H2SO4 से भी निकाल सकते हो, NaOH से भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है. बट मुझे ज्यादा इजी लगता है 10 ग्राम्स वाला, क्योंकि ये डेसिमल हो गया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें दिक्कत होगी. तो इजी वे इज 10 ग्राम्स वाला काम करते हैं. किसके साथ करें वो? NaOH के साथ करें. आओ काम करना स्टार्ट करते हैं. सो आई वुड राइट दैट 80 grams of NaOH produces 142 grams of Na2SO4. Is this clear बेटा? बोलो बच्चे, पक्का? आगे चलते हैं. 1 gram of NaOH would produce 142 by 80 grams of Na2SO4 and 10 grams of NaOH would produce 142 by 80 into, say cancel, comes out to be 71 by 4 or it would be 17.75 grams of Na2SO4. 17.75 grams of Na2SO4. बेटा ये तो मास आया, बट उन्होंने क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ मोल्स भी पूछे थे. बहुत इजी है ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 क्या हो जाएगा बच्चा? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास कितना है? 17.75 बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास? 142. डिवाइड करोगे मेरे बेटा, यू वुड गेट योर आंसर दिस मच मोल्स ऑफ इट. बोलो बच्चे, इज दिस क्लियर टू बी ऑल ऑफ अस? कुछ पूछना है? पक्का? गो फॉर इट फास्ट. हाँ जी, पेज नंबर 23 मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आ जाओ बेटा. पेज नंबर 23 मिसलेनियस क्वेश्चंस. मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आद्या पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं. 12th क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे सब क्या बोल रहे हैं. पढ़ बच्चे. CaCO3 solid plus 2HCl aqueous, CaCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. ठीक है बच्चा, आगे पढ़ो. हाँ जी, आप सुनेंगे सब, इधर नोट डाउन आराम से करेंगे, बाद में पहले समझेंगे मेरे साथ क्वेश्चन क्या है. गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चा इक्वेशन इज बीइंग गिवन टू अस. हमें कुछ नहीं बनानी इक्वेशन, एवरीथिंग इज गिवन. बोला क्या? दैट हाउ मच मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml of 0.75 molar HCl. इसके 25 ml of 0.75 molar HCl है, उसके लिए आपसे ये बात पूछ रहे हैं कि हाउ मच मास ऑफ CaCO3 वुड बी रिक्वायर्ड. इज द क्वेश्चन बीइंग क्लियर? पहले तो ये बात करते हैं. सॉल्व कैसे करना है सोचेंगे, बट क्वेश्चन क्लियर है.
हमने स्टोइशियोमेट्री प्रॉब्लम्स किससे सीखी बेटा? मास के थ्रू करना। हम मोलर मास की इक्वेशन बनाते थे, उसी के थ्रू करते थे। बट अभी क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो बच्चा मुझे मास गिवन नहीं है। क्या गिवन है? तो फर्स्ट थिंग मेरी क्या होगी, दैट आई वुड बी फाइंडिंग आउट द मास ऑफ फर्स्ट थिंग, और उसके बाद मैं CaCO3 को अकॉर्डिंग टू HCl फाइंड आउट करूंगा। तो पहले एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना दे मोलर मास वाली। इज दिस अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? फर्स्ट लुक एट दैट। अगर बैलेंस्ड है तो आगे प्रोसीड करते हैं। क्या? दैट इज 100 ग्राम्स। HCl का मास होता है बच्चा 36.5, क्योंकि Cl इज 35.5, H इज 1, तो 36.5 comes out to be 73 grams, 111 grams, 44 grams, and that is 18 grams. अब जल्दी से मास निकाल लें पहले HCl का मास है। सर कैसे निकालेंगे मास? बेटा हमें मोलैरिटी दे रखी है, हमें वॉल्यूम दे रखी है। वॉल्यूम और मोलैरिटी के थ्रू मास तो हम इजीली निकाल सकते हैं, मोलैरिटी तो हम पढ़ के आ चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बेटा नंबर ऑफ मोल्स को भी मैं कैसे चेंज कर लूं? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। सो मैं यहां पे क्या लिखना चाह रहा हूं? गिवन मास ऑफ किसका? HCl का, बाय HCl का मोलर मास विच इज 36.5 इंटू 1 बाय वॉल्यूम कितनी है बच्चे? 25 ml है बेटा, हमें किसमें चाहिए होती है? तो डिवाइडेड बाय। इतनी बात में किसी को प्रॉब्लम? सर क्या किया आपने वहां पे? क्लियर? क्या बच्चा? सो molarity is being given to us as 0.75 is equal to given mass of HCl by 36.5 into, डायरेक्टली मैं कैंसिल आउट करूं तो shall I write 40 over here? तो क्या हो जाएगा बेटा? given mass of HCl would be 0.75 into 36.5 by 40। होगा ऐसा? जल्दी से मेरे को फाइंड आउट करके बता दो कोई, क्या आ रहा है मास? मल्टीप्लाई इट अप, डिवाइड इट अप एंड गिव मी द मास। क्या आ रहा है हमारा मास? तो अगर मैं करना चाहूं तो दिस वुड बी 100 ओवर हियर, 8 एंड 15 तो भी कर लो, इट वुड बी 1000। 15 इंटू 365 बाय 8000। क्या बचा? 0 पॉइंट पे आएगा बच्चे शायद से। लेट्स सी, गिव मी द मास, व्हाट इज दिस कमिंग आउट टू बी? So it's coming out to be 0.68 grams, 684 grams। ये आ गया बेटा। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। अब तो जनरल क्वेश्चन है जो हम सीख चुके हैं, वही काम करना है अब हमको। किसका मास गिवन है बच्चे हम लोगों को? HCl का। और क्या सिखाया? जिसका भी गिवन होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसका निकालना है उसको राइट हैंड साइड पे। सो आई वुड टेक 73 grams ऑफ HCl reacts with requires 100 grams of कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास कितना है बेटा? 0.684, so 1 gram of HCl would require 100 by 73 grams of CaCO3, and we are being given with 0.684
684 grams of HCl. That would be 100 by 73 into 0.684. That would be 684 by 730. Find out this thing. 684 by 730. What it's coming out to be? 684 by 730. So I think so it would be coming out to be 0.93. 0.93 grams. बोलो मेरे बच्चा. Everyone clear with this? Easy? Difficult तो नहीं है. This is the work of stoichiometry. जो आप पूछ रहे थे stoichiometry का काम क्या होता है, ये है बेटा stoichiometry का काम. पूरी कैलकुलेशन करने का काम होता है सारा stoichiometry का. दैट किसी एक सब्सटेंस को रिएक्ट करके हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट अदर वन एंड द प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म, वो सब स्टोइशियोमेट्री बताती है. वैसे नहीं पता लग सकता आपको. जब तक यहाँ पे ये चीजें नहीं पता होंगी तो आपका बेटा जो आंसर आएगा दैट वुड ऑलवेज कम आउट टू बी रॉन्ग इफ यू वुड नॉट बी नोइंग विद द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स. क्लियर? These numbers we call it to be stoichiometric coefficients. Got it? Everyone, जल्दी से नोट डाउन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 वी में स्टार्ट डूइंग इट. आपको आता होगा, आराम से कर भी सकते हो 13th क्वेश्चन. बस एक चीज पता होनी चाहिए, वहां पे मैंगनीज का मास इज 55 ग्राम्स. मैंगनीज इज 55 ग्राम्स. वो आपको चाहिए होगा. दैट यू शुड नो. That would be 55 grams. Apart from that, you would be able to do 13th question. Let's try it out. Question number 13th. अगर ये हो गया तो बच्चा. $55 बचे. Manganese is 55. Let's go. जल्दी से. शगुन पढ़ बेटा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. हम्म. 4HCl plus MnO2 plus MnCl2 plus Cl2. ठीक है बच्चा, आगे. तो मेरे बेटा देखो, हमको इस चीज की कहीं पर जरूरत ही नहीं है, तो इसका आप मास नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए तो ये दोनों ना बस. तो अगर HCl की बात करूं बच्चा, तो HCl का मोलर मास होता है 36.5. 36.5 इंटू 4 करते हो आपका तो आता है, दैट कम्स आउट टू बी 146 ग्राम्स. MnO2 करोगे तो बच्चा इट वुड कम आउट टू बी 87 ग्राम्स. क्वेश्चन में निकालना क्या है, HCl या MnO2? HCl निकालना है, तो व्हाट आई वुड राइट, 87 ग्राम्स ऑफ MnO2 reacts with 146 grams of HCl. 1 gram of MnO2 would react with 146 by 86 grams of 87 grams of HCl. And आपको कितना बोला हुआ बच्चा, 5 grams. तो 5 grams of this would react with 146 by 87 into 5 grams of HCl. अगर इसको सॉल्व करोगे तो it would surely be coming out to be 8.37 to be exact. अगर थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है कोई बात नहीं, 8.3
5 आए, 3 7 आए, 3 2 आए, 3 भी लिख लो खाली तो भी कोई दिक्कत नहीं, इट्स परफेक्टली राइट। आया समझ में बेटा? पक्का? नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से। तो स्टोइशियोमेट्री, इज एवरीवन क्लियर विद हाउ द स्टोइशियोमेट्री क्वेश्चंस आर टू बी डन? इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री में कोई नहीं होएगा जो आपने 12th करा या 13th करा। योर लेवल इज दिस कि इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आपको मोलैरिटी दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे और बोलेंगे कि स्टोइशियोमेट्री बताओ, या आपको डायरेक्ट स्टोइशियोमेट्री दे देंगे, बोलेंगे दूसरे का मास बताओ। दैट वुड बी द केस। इज दिस क्लियर? पक्का? आगे चल सकता हूं फिर मैं? किसी को भी कोई डाउट नहीं? नोट डाउन हो गया? शगुन हो गया बच्चे? चलो, अगर हो गया है तो अब ध्यान से सब मेरे साथ यहाँ पे कोई, हाँ बेटा बोल। वही तो कर रहे हो ये सारे, और क्या कर रहे हो आप? जो 5 ग्राम्स ऑफ MnO2 और ये सब, ये वही तो किए। एक टाइप है जिसमें मास डायरेक्टली गिवन होगा, दूसरा है जिसमें मास नहीं गिवन होगा, मोलैरिटी गिवन होगी, वॉल्यूम गिवन होगी, जो हमने अभी 12th क्वेश्चन किया। नहीं, चले आगे। ठीक है, अब हम नया कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। सब रेजिस्टर्स बंद कर दो, कुछ नहीं करना, पहले समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, उसके बाद करेंगे क्या है अच्छे से यहां पे, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक जो आप लोगों को लगता है मुश्किल है, नहीं आपको लगता है डिफिकल्ट टॉपिक है। तो लेट्स गो फॉर दैट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। सर ये होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? ठीक है, अब देखो किसी भी एक इक्वेशन की अगर मैं बात बोलूं बच्चा, तो a equation can be having with 2 reactants, can be having with 3 reactants, can be having with 4 reactants or more than that also। बट क्या ऐसा जरूरी है बेटा कि जो 2 रिएक्टेंट्स आपके पास होंगे वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट इक्वल क्वांटिटी में होंगे, जो कि एक ही टाइम पे दोनों खत्म हो जाएंगे? क्या ऐसा होता है? जरूरी है ऐसा कि both the reactants would be present in equal quantity and both of them would finish at the same time? Is that the case? कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम शुगर और वाटर को ही मिक्स करते हैं, तो बेटा 1 टीस्पून ऑफ शुगर डालते हो मिक्स हो जाती है, दूसरा डालते हो मिक्स हो जाती है। मतलब अभी वाटर के पास और कैपेसिटी है ना, वो और डिसॉल्व कर सकता है अगर वो चाहे तो, बट आप शुगर की क्वांटिटी कम ले रहे हो और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो, इसलिए आपका अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन बन रहा है। अगर शुगर और ज्यादा कर दोगे तो सॉल्यूशन और क्या हो जाएगा? मीठा बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ज्यादा उसमें शुगर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इट्स नॉट द केस दैट एवरी टाइम वी आर टेकिंग द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, चाहे वो 2 हैं चाहे 3 हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। It could be possible that out of the 2 reactant, one of them would be present in higher concentration and the other one would be present in lesser amount। एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और साथ में मैंने 2 ग्राम्स ऑफ शुगर डाल दी, बेटा उस ग्लास ऑफ वाटर में कैपेसिटी है वो 100 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व करा सकता है, बट हमने क्या डाली है? 2 ग्राम्स। तो मतलब जो उसमें स्वीटनेस आएगी वो 2 ग्राम्स के अकॉर्डिंग ही तो आएगी। 100 ग्राम्स वाटर तो था, बट क्या वाटर अकेले वो स्वीटनेस दे देगा? Out of the 2 reactants or 3 reactants, there can be that one of the reactant is in higher amount and the other reactant is in lesser amount। होता है ऐसा। उस कॉन्सेप्ट के लिए वी कम ओवर टू द लिमिटिंग रिएजेंट। अब 2 रिएक्टेंट में से बेटा जो भी रिएक्टेंट हमारे रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा, जो रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, उसको हम नाम देते हैं बच्चा लिमिटिंग रिएजेंट। सर नहीं समझ में आया, बताओ होता क्या है? अभी अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया? शुगर एंड वाटर का। 1 ग्लास ऑफ शुगर लिया, उसमें 2 ग्राम्स ऑफ 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 2 ग्राम्स ऑफ शुगर डाली, तो स्वीटनेस किसके अकॉर्डिंग आ रही है? 2 ग्राम्स ऑफ शुगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वाटर की तो टेंडेंसी और शुगर पे डिसॉल्व कर सकता है। तो हमारा यहाँ प्रोडक्ट क्या है? दैट इज द स्वीट सॉल्यूशन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड। वो किसने डिसाइड किया? जो कि कम क्वांटिटी में था,
जो जल्दी खत्म हो रहा था वो कौन था? शुगर था। उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. So the reactant which is being used up completely in the reaction and which decides the amount of product formed in the reaction, कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है वो लिमिटिंग बता सकता है. दूसरा एक और रिएजेंट होता है जिसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, वो नहीं बता सकता. वाटर ने डिसाइड किया क्या कितना स्वीट पानी बनेगा? वो क्या उसने डिसाइड किया? नहीं, क्योंकि वाटर क्या था? एक्सेस. और शुगर क्या था? लिमिटिंग. So the reactant which is being completely used up in the reaction and which decides the amount of product formed, we call that to be limiting. And the one which is present at the end of the reaction also, मतलब जो excess amount में है, जो खत्म नहीं हुआ, जो रह गया रिएक्शन में बचा हुआ, उसको हम नाम देते हैं एक्सेस रिएजेंट. एंड इट डू नॉट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है. कितना प्रोडक्ट बनेगा कितना नहीं बनेगा उसको उससे कोई मतलब नहीं है. मतलब किसको है? वाले को मतलब है. इट की लिमिटिंग क्या होता है और एक्सेस क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल हो गया. तो अगर हमने वाटर की प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज शुगर सॉल्यूशन, स्वीटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. क्या वो आपका सॉल्यूट जो आपका एक्सेस अमाउंट में वो डिसाइड कर पा रहा है उसकी स्वीटनेस? वही तो हमारा प्रोडक्ट है. क्लियर है बच्चा? पक्का से राइट डाउन. सबसे पहले हेडिंग दे दो एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट. द कॉन्सेप्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट. हेडिंग दे दो एंड राइट इट डाउन. होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल write down the reactant which is the reactant which is completely used up in a chemical reaction, and which decides the amount of product formed. The reactant which is completely used up in a chemical reaction and which decides the amount of product formed is known as limiting reagent. उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चा? लिमिटिंग रिएजेंट का नाम देते हैं. नेक्स्ट लिखो एक्सेस रिएजेंट. की amount of product formed is known as limiting reagent. सेकेंड लिखो बच्चा एक्सेस रिएजेंट. लिखो बच्चा क्या होता है एक्सेस रिएजेंट? राइट डाउन. द reactant which is left over at the end of the reaction, and which do not decide the amount of product formed, is known as excess reagent. उसको आप क्या बोलते हो? एक्सेस रिएजेंट. अब ध्यान से यहां पे देखेंगे समझेंगे
क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट्स के। ओवर हियर सी, let's say it's been given to us in the question that we are having with 5 moles of H2 which are combining with 2 moles of O2 and they are forming water. दोनों combine करके they are forming water. And what they are asking from us, सबसे पहली चीज that which is acting as limiting reagent over here. Second, the number of moles of water formed. Third, the amount of water formed. Fourth, number of moles of excess reagent which are left unreacted, जो बच गया reaction में कितने number of moles बचे उसके. And fifth, the weight of excess reagent which is left unreacted. क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहे हैं आपसे? कभी भी ध्यान रखना बेटा, यहां से हम डिसाइड नहीं कर सकते विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। इस क्वेश्चन में आपका आंसर जरूर से आ जाएगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट इज O2, और आप सोच भी रहे हो कि O2 आना चाहिए, बट मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम होंगे वो एक्सेस रिएजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा और जिसके ज्यादा होंगे वो लिमिटिंग की तरह एक्ट कर रहा होगा। सो वी कैन नॉट डिसाइड इट फ्रॉम हियर, दैट्स फॉर श्योर। इससे तो कभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितने मोल्स रिएक्टेंट के दे रखे हैं उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लो, नो। इतनी बात क्लियर है? नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन। कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल। फर्स्ट थिंग मिलेगा टाइम आराम से लिखने का, अभी कुछ नहीं करना, रख देते हैं, पेन भी रख दे, रजिस्टर भी बंद कर दे, कोई जरूरत नहीं अभी कुछ। सो सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेज दैट इज H2 gas plus O2 gas gives H2O liquid। यही होती है बेटा इक्वेशन, तो इसको बैलेंस कर ले। सो 2H2 गैस एंड 2H2O बैलेंस्ड। अब हमें जब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना है बेटा, तो एक एक रिएक्टेंट से चेक करो कि प्रोडक्ट कितना बन सकता है मैक्सिमम, मतलब जितना H2 है उस H2 से मैक्सिमम वाटर कितना बन सकता है, जितना H2 है, जितना O2 है उससे मैक्सिमम वाटर कितना बन सकता है, पहले वो चेक करेंगे। और जो भी कम क्वांटिटी में वाटर बना के देने की कैपेसिटी रखता होगा उसी को तो लिमिटिंग मानोगे, क्योंकि क्या अकेला एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, चलो मान लो H2 खत्म हो गया, तो क्या अकेला O2 वाटर बना सकता है? H2 जब तक नहीं होगा O2 तो वाटर नहीं बना सकता ना। तो दोनों में से जो भी कम वाटर बना के दे रहा होगा दैट वुड ऑटोमेटिकली बी एक्टिंग एज अ, पक्की बात। आओ काम करते हैं। सो इक्वेशन सेज दैट 2 moles of H2, ये भी अगेन स्टोइशियोमेट्री का काम आ रहा है यहां पे, 2 moles of H2 producing 2 moles of water. So I would write over here that 2 moles of H2 gives us 2 moles of H2O। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन में कितने मोल्स है बेटा H2 के? So I would write that 5 moles of H2 produces 5 moles of H2O। क्लियर? मतलब बेटा जब H2 पूरा कंज्यूम होगा तो मैक्सिमम वाटर जो बन सकता है वो इतना बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैक्सिमम वाटर H2 के कोरोस्पॉन्डिंग कैन बी 5 मोल्स। ये बात क्लियर? अब आओ O2 पे। 1 मोल ऑफ O2 produces 2 moles of H2O। आपके पास कितने मोल्स है बेटा O2 के? O2 के देयर आर 2 मोल्स, सो
2 moles of O2 would be providing, तो मेरे बेटा जब आपका O2 पूरा खत्म होगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम वाटर जो बन सकता है वो कितना बन सकता है? तो रिएक्शन में कौन पहले खत्म हो रहा है? तो लिमिटिंग कौन होएगा बच्चे? तो कैन आई राइट दैट लिमिटिंग रिएजेंट ओवर हियर इज, कोई दिक्कत किसी को? रिएक्शन में वाटर कितना बनेगा? 4 मोल्स। कभी कभी हम ज्यादा स्मार्ट सोचते हैं अपने आप को, सर 5 + 4 9 मोल्स। कैसे बन सकते हैं? 4 मोल्स मैक्सिमम बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे O2 ही खत्म हो जाएगा। जब O2 खत्म हो जाएगा तो अकेला H2 तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ना। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट बना रहा होगा मोल्स, वही हो जाएंगे प्रोडक्ट के मोल्स। आपको दिमाग ही नहीं लगाना कुछ। जो भी लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट बना रहा होगा जितना भी, दैट वुड बी द मैक्सिमम प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है? सो इट वुड बी 4 moles of water. अब वेट ऑफ मास ऑफ वाटर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो 4 into 18 comes out to be, बोलो मेरे बेटा किसी को डाउट इसमें? सर क्या किया नहीं पता लगा। अभी खत्म नहीं हुआ, और भी है, अभी 2 चीजें और बची हैं अभी। कितनी बात समझ गए? चले अब आगे। अब आते हैं बेटा एक्सेस रिएजेंट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। बोलता है जब आपको एक्सेस रिएजेंट निकालना है, पता तो चल गया कौन एक्सेस है। जब O2 लिमिटिंग है तो H2 वुड बी शॉर्ट शॉर्ट है। तो अब कितना एक्सेस है वो निकालना है हम लोगों को। तो बोलता है जब आपको एक्सेस रिएजेंट निकालना है बच्चा, तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कर रहे थे। कब? जब लिमिटिंग निकालना था। अब जब एक्सेस निकालना है तो बोथ द रिएक्टेंट शुड बी कंपेयर्ड विद वन अनदर, कीपिंग लिमिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कीपिंग लिमिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कौन है लिमिटिंग बच्चे? O2। तो shall I write this thing? बोलो मेरे बेटा, इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत? सर क्या किया नहीं पता लगा हमें। बेटा O2 का 1 मोल कितने मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करता है? कोई तो लिखा मैंने। और मैंने क्या कहा? लेफ्ट हैंड साइड पे किसको रखना है? लिमिटिंग को। तो मेरा O2 लिमिटिंग था, H2 एक्सेस था। अब आपके पास कितने मोल्स हैं O2 के क्वेश्चन में? सो 2 moles of O2 would be requiring, 1 से 2 चाहिए तो 2 से 4 moles of H2। बोलो मेरे बच्चा, yes और no? तो मतलब जब आपका O2 पूरा खत्म होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे H2 कितना खत्म होगा? आपके पास H2 था कितना? 5 में से 4 खत्म हो गया, कितना एक्सेस बच गया? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ excess reagent left unreacted, that would come out to be 5 minus 4, that is, and weight of excess reagent left unreacted, that would be number of moles into molar mass, that would be 1 into H2 का molar mass क्या होता है मेरे बच्चा? H2 का 2, so mass would be 2 grams बच्चा। बोलो मेरे बेटा, किसी को भी कुछ भी नहीं क्लियर हुआ हो, इवन अ स्मॉल बिट ऑफ इट कैन आस्क। सब चीज अच्छे से नोट डाउन करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर बोल रहा हूं।
पेपर में क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के। गो फॉर इट। अभी क्वेश्चन चलो फ्रेम आउट कर लो, लिख लो क्वेश्चन, मैं बोल देता हूं। 5 moles of H2 reacts with 2 moles of O2 to form water. Calculate first which reactant is acting as limiting reagent. Second, calculate the number of moles and mass of water formed. Third, calculate the number of moles and amount of excess reagent left unreacted. Go for it बच्चे, all of us. जल्दी से नोट इट डाउन। अगर नोट करते हुए भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है पूछो। यहां पे पूछ रहा अभी, ये लिखा हमने, ये जो जितना भी लिमिटिंग से आ रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे बेटा। जितना भी लिमिटिंग से आएगा सोचना नहीं है आपको। यहाँ पे 4 आ रहा था तो हमने डायरेक्ट 4 ले लिया, यहाँ पे 10 आता तो आई वुड हैव टेकन इट टू बी 10। जितना भी आएगा डायरेक्टली वी वुड टेक दैट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। हाँ जी, नहीं 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 डालना चाहिए। क्यों डालना है? नहीं, जब तक वो कुछ पूछ नहीं रहे कोई बात नहीं तो क्यों डालना है? We can try out page number 17, question number 2. It's a limiting reagent question. Same, exactly same question, बस उसमें values अलग दी हुई हैं, उसके according answer अलग आएगा। Page number 17, question number 2. Go for it. सीख लो मेरे साथ excess reagent में क्या करना होता है, कैसे करते हो। देखो, if anyone is having any problem, you can see over here. Reaction फिर वही थी बेटा, 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2O लिक्विड। ये थी बेटा। अब सबसे पहली चीज आपको एक्सेस रिएजेंट निकालना है और लिमिटिंग कौन आ रहा था हमारा? H2 आ रहा था। सबका आ रहा था H2 लिमिटिंग, ठीक है। चल H2 लिमिटिंग आ रहा था, बिल्कुल ठीक बात है। अब H2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? 1 मोल ऑफ H2 रिक्वायर्स 2 मोल्स थे H2 के, तो 2 मोल्स ले लेते हैं। 2 moles of H2 requires 1 mole of O2। आपके पास क्वेश्चन में H2 के मोल से बचा 7, तो 7 moles of H2 would be requiring 1/2 into 7, that is 3.5 moles of O2। तो मेरे बेटा 3.5 moles of O2 तो यूज हो गए। आपके पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 दे रखे हैं 4 में से 3.5 यूज हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट विच वुड बी लेफ्ट अनरिएक्टेड would be total, that was 4 minus used, that was 3.5, it comes out to be 0.5 moles।
yes or no? पक्का? अब weight of excess reagent which is left unreacted, number of moles into molar mass, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 0.5, मोलर मास कितना है O2 का 32, कम्स आउट टू बी, बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट हो, कुछ ना क्लियर हुई हो बात, प्लीज आस्क। हाँ जी बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बेटा दोनों को कंपेयर करता ना प्रोडक्ट के साथ, जैसे अभी तो हमने किया बिल्कुल, इसको भी कंपेयर करो। जैसे इस क्वेश्चन में H2 जो दे रखा है वो 7 दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू दैट 2 मोल्स से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो 7 मोल्स से कितने बनेंगे बेटा, खुश 7 बनेंगे। अब आओ O2 पे, O2 कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 4, तो 4 मोल्स ऑफ O2 से अगर 1 से 2 मिल रहे हैं तो 4 से, तो लिमिटिंग कौन है बच्चा, जो भी कम प्रोडक्ट बना रहा है, कम कौन बना रहा है H2 बना रहा है, तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा यहाँ पे H2 हो जाएगा हमारा लिमिटिंग, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, जो भी लिमिटिंग ने बनाए वो की कितने हैं, दैट इज 7 मोल्स, उसके अकॉर्डिंग वेट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास which would be 7 into 18 comes out to be 126। समझ में आ गया पक्का से, जल्दी से गो फॉर इट, फास्ट, ट्राई इट आउट। हो गया, सबने कर लिया है अच्छे से, तो वी कैन ट्राई आउट द क्वेश्चंस, राइट डाउन द क्वेश्चंस दैट वी वुड बी ट्राइंग इट आउट। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 15, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व। पेज नंबर 17 पे फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 15 पे था सॉल्व वाला बेटा, और ये 17 पे है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन, ये करने हैं बच्चा 5 क्वेश्चंस लिमिटिंग रिएजेंट के। हाँ जी, पेज नंबर 15 पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद पेज नंबर 17 पे 3 4 5 6, 17 या 18 पेज नंबर है जो भी, 3 4 5 6, ठीक है। अनसॉल्व वाले के नहीं, मैं बताऊंगा वो सब, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब बात करते हैं फर्दर आगे, ओके।